Good morning students, class 8, chapter number 13, direct and inverse proportions. In the previous video, we have complete exercise 13.2 up to question number 2. And we discuss about inverse proportions. Inverse proportion in which if one quantity increase, then other quantity decrease. If one quantity increase, then other quantity decrease. Then it is a property of inverse proportions. Now we discuss question number 3. In the question number 3, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स. रहमान एक व्हील तैयार करता है जिसमें वो स्पॉक्स का यूज कर रहा है. ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन द एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स आर इक्वल. यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स के बीच बनने वाला एंगल हमेशा इक्वल रहे. तो हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. यानी कि सपोज जो रहमान व्हील तैयार करता है, अगर उसने उसमें 4 स्पॉक्स लगाए तो दो कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री का. और अगर वो यहाँ पर 1 2 3 4 4 स्पॉक्स लगाता है, सो कंप्लीट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. सो 360 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो द वैल्यू इज 90 डिग्री. सिमिलरली अगर वो वहां पर लगाता है 6 स्पॉक्स, सो वी ऑब्जर्व दैट कंप्लीट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6. सो 360 डिवाइड बाय 6 इट्स मीन 60 डिग्री. तो हर कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री का. नाउ इफ देयर इज नंबर ऑफ स्पॉक्स आर 8, देन एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स, वेरी सिंपल. अगेन complete angle is 360 degree, so 360 degree divided by 8, and the value we obtained is 45 degree. So the value of y3 is 45 degree. If there is number of spokes are 10, so similarly we divide 360 degree by 10, and the value is 36 degree. So value by 4 is 36 degree. And if number of spokes are 12, so the angle between two consecutive spokes 360 upon 12, it's mean the value is 30 degree. Now we have to simplify 3 parts. In the first part, he considered that are the number of spokes and the angle formed between the pair of consecutive spokes is inverse proportions. हमें चेक करना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं या नहीं. वैसे तो हम देख सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स की काउंटिंग को इंक्रीज करते हैं, देन एंगल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज डिक्रीजेस. सो इट इज अ इनवर्स वेरिएशन. But we have to consider that it is a inverse proportions, yes or no. So for checking this, multiply x1 into y1, it's mean 4 multiply 90, so the value is 360. x2 and y2, 6 multiply 60, again 360. x3 multiply y3, it's mean 8 multiply 45, again 360. x4 multiply y4, it's mean 10 multiply 36, it's mean 360. And x5 multiply y5, it's mean 12 multiply 30, it's mean 360. So we can say that these table represent property of inverse proportions. So in the first part we note down yes. Now second part, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. यानी अगर हम स्पोक्स की काउंटिंग 15 करते हैं, अगर हम स्पोक्स की काउंटिंग 15 करते हैं तो उनके बीच में बनने वाले एंगल्स को फाइंड करना है. तो इट्स वेरी सिंपल. अगेन वी यूज द सेम प्रोसीजर. 3 for the second part, 360 divided by 15, and the value we obtained is 24 degree. And in the
last part, how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree? अगर दो consecutive spokes की एंगल 40 डिग्री का है, so the value of number of spokes, because it is a property of inverse proportions, then we can say that 4 multiply 90 is equal to x7 multiply 40. So x7 is equal to 4 multiply 90 upon 40, and the value we obtained is 9. So if there is angle between two consecutive spokes is 40 degree, then number of spokes are 9. So I sure question number 3 is clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 4. In the question number 4, if a box of sweets is divided among 24 children, एक बॉक्स में स्वीट्स हैं, उनको 24 चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, यानी कि हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलती हैं. तो हाउ मैनी वुड यू ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4? It's mean it is given that if number of children are 24, then each child has sweets, यानी कि sweets for each child is 5. अगर वहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की काउंटिंग 4 रिड्यूस कर दी जाए, इट्स मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन नाउ 20, देन ईच चाइल्ड गेट स्वीट्स. तो हमें उसकी काउंटिंग फाइंड आउट करनी है, बिकॉज वी ऑब्जर्व दैट अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहे हैं, then number of sweets got by each child increases. So it is a property of, we can use the property of inverse proportions. It's mean x1 multiply y1 is equal to x2 multiply y2. So 24 multiply 5 is equal to 20 multiply y2, and the after calculation the value we obtained is 6. तो अब हर बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी. सिमिलरली इन द क्वेश्चन नंबर 5, अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, यानी कि अगर उसके पास 20 एनिमल्स हैं तो वो उनको 6 दिन तक खाना खिला सकता है. अगर वहां पर 10 एनिमल्स और आ जाएं, यानी कि अब एनिमल्स की काउंटिंग 20 की बजाय 30 हो गई, तो अब वो कितने दिनों तक उस खाने को यूज कर पाएगा. तो सिमिलरली अगर हम एनिमल्स की काउंटिंग को इंक्रीज करते हैं तो फूड तो उतना ही है, तो अब जो खाने की मतलब जो खाना यूज हो पाएगा वो कम दिन में खत्म हो जाएगा. इट्स मीन अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं देन अदर क्वांटिटी डिक्रीज. सो इट इज वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस. इट्स मीन सिमिलरली लाइक क्वेश्चन नंबर 4, we can note down 20 multiply 6 is equal to 30 multiply y2, and after calculation the value we obtained is 4. So 4 days, यानी कि अब जो वहां पर खाना है वो 4 दिनों में ही खत्म हो जाएगा. एंड सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट लगाया कि अगर वो 3 पर्सन्स को हायर करता है तो वो जसमिंदर के मकान की जो रीवायरिंग है वो 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है. यानी कि अगर नंबर ऑफ पर्सन 3 है तो नंबर ऑफ डेज जो कंज्यूम होंगे वो 4 होंगे. अब कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज कर दिया, यानी कि 4. तो अब जसमिंदर के हाउस में जो रीवायरिंग का काम होना है क्या वो उतना ही रहेगा? ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने पर्सन्स की काउंटिंग इंक्रीज करी है, तो जो काम जितने दिनों में कंप्लीट होना था वो कम हो जाएगा. सो इट इज अगेन वी कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस. सो सिमिलरली लाइक क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 3 multiply 4 is equal to 4 multiply y2, and after calculation y2 equal to 3 days. So I sure question number 4, 5 and 6 are clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 7. In the question number 7, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box.
यानी कि अगर हमारे पास टोटल 25 बॉक्सेस हैं तो मैं हर एक बॉक्स में 12 बोटल्स फिक्स करता हूं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड अलोंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, अगर मेरे पास बोटल्स की काउंटिंग उतनी ही है और मुझे हर बॉक्स में मुझे 20 बोटल्स रखनी है तो कुल कितने बॉक्स तैयार होंगे। ऑब्वियसली अगर मैं हर बॉक्स में बोटल्स की काउंटिंग इंक्रीज करता हूं, यानी कि पहले 12 बोतल थी हर एक बॉक्स में तो 25 बॉक्सेस प्रिपेयर हो रहे थे। अगर मैं हर बॉक्स में 12 बोटल्स की काउंटिंग इंक्रीज करता हूं तो नेट नंबर बॉक्सेस की काउंटिंग इंक्रीज होगी। सो इट इज द प्रॉपर्टी वी कैन यूज इनवर्स प्रोपोर्शंस। एंड सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वी नोट डाउन 25 multiply 12 is equal to x2 multiply 20, and after calculation we can find out x2. Similarly, in the question number 8, number of machines, it is given that a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. यानी कि अगर 42 मशीन्स का यूज करता है तो वो 63 डेज में आर्टिकल्स तैयार कर सकता है। अब अगर वहां पर डेज की काउंटिंग 54 कर दी जाए, यानी कि हमारे पास दिन कम रह गए और आर्टिकल्स हमें उतने तैयार करने हैं, सो वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ मशीन्स। तो अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं देन अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस, तो इट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वी नोट डाउन 42 multiply 63 is equal to x2 multiply 54 and find out value of x2. And in the question number 9, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. यानी कि वो 60 km/h की स्पीड से ट्रेवल करती है कोई गाड़ी, तो वो 2 घंटे में अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर वो स्पीड 80 km/h करती है तो टाइम, ऑब्वियसली अगर कोई भी गाड़ी अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है तो टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। सो एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से अदर क्वांटिटी डिक्रीज, so again it is the property of inverse proportions. So like previous question we find out value of x2. So I sure question number 7, 8 and 9 are clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 10. In the question number 10, 2 persons would fit new windows in a house in 3 days. 2 पर्सन मिलकर एक मकान में एक विंडो 3 दिन में फिट कर देते हैं। So if number of persons are 2, then number of days is 3. In the first part, one of the person fell ill before the work started. अगर एक बंदा बीमार हो जाए तो how long would the job takes out now? यानी कि अब काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ पर्सन अगर 1 है तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। इन द सेकंड पार्ट, हाउ मेनी पर्संस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अगर हमारे पास केवल एक ही दिन हो तो हमें कितने पर्संस वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। सिंपली अगर नंबर ऑफ पर्संस और नंबर ऑफ डेज को कंसीडर किया जाए तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्संस की काउंटिंग डिक्रीज हो रही है तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए डेज की काउंटिंग इंक्रीज होगी। यानी कि अगर पर्संस की काउंटिंग डिक्रीज होती है देन नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस, तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस। सो 2 multiply 3 is equal to 1 multiply y2 is equal to x3 multiply 1. Firstly we take these two values and find out y2, and next we take these two values and find out value of x3 like previous questions. And now discuss question number 11. In a question number 11, a school has 8 periods a day, each of 45-minute duration. यानी कि किसी स्कूल में अगर 8 पीरियड्स हैं तो हर एक पीरियड का टाइम इंटरवल 45 मिनट्स का है। तो अगर स्कूल में नंबर ऑफ पीरियड्स की काउंटिंग 9 कर दी जाए तो हर एक पीरियड में का जो ड्यूरेशन होगा वो हमें फाइंड करना है। नाउ अगर स्कूल का टाइम उतना ही फिक्स है तो अगर मैं पीरियड्स की काउंटिंग इंक्रीज करता हूं तो मुझे हर पीरियड का ड्यूरेशन कम करना होगा। सो अगेन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शंस। सो लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस यू हैव फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y2।
So I sure both questions also clear. So exercise 13.2 complete. So I sure the direct inverse proportions both are clear. So thank you very much.